Hello students, welcome to the destination classes. Today I am going to teach you exercise 3.4. First of all, let us understand the concept of exercise 3.4. The concept of exercise 3.4 is elementary transformation. बच्चों, by elementary transformation, what we do, we find the inverse of a matrix. We find the inverse of a given matrix by the method called as elementary transformation. अब किस तरह से वो फाइंड आउट किया जाता है उसके रिगार्डिंग जो आपका कंसेप्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल और रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. नाउ सी, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स which is also called as unit matrix. And we all know about the identity number or unit number. बच्चों, अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं तो यूनिट नंबर किसको कहते हैं हम? 1 को. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि ये भी जिस तरह से नॉर्मल रियल नंबर्स में 1 होता है, उसी तरह मैट्रिसेस में जो 1 होता है उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिसेस. डिफरेंट ऑर्डर्स की होती है. अगर मैं 2x2 ऑर्डर की बात करता हूँ तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 0 0 1. मैं 3x3 ऑर्डर की बात करता हूँ 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1. ये इसके डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं. मैट्रिसेस में 1 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और रियल नंबर में 1 का मतलब होता है आइडेंटिटी नंबर और यूनिट नंबर. अब वो रूल्स क्या होते हैं जिसके बेसिस पर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यानी कि किसी भी मैट्रिसेस का हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं. आइए देखते हैं. In case of a 1, we know that 1 raised to power anything is equal to 1. For example, 1 raised to power 5 is equal to 1. 1 raised to power 1000 is equal to 1. In a similar way, anything raised to power identity matrices is equal to identity matrix. This is the symbol of identity matrix, I. I is the symbol of identity matrix. For example, I raised to power 5 is still be equal to I. आप देख सकते हो I raised to power 5 means 1 raised to power 5, that is 1. 0 raised to power 5 0, 0 raised to power 5 0 and 1 raised to power 5 1, means still its value is 1001, right? Now we also know that if we multiply 1 with any number or multiply 1 with any number, it will be equal to 1. It will be equal to that number. For example, if I multiply 5 into 1 or 1 into 5, it will be equal to 5. In a similar way, if I multiply any number with identity matrix or identity matrices with that number, it will be equal to that number itself. For example, if I multiply these matrices by 5, what I am going to have? 5005. जहां भी 1 है वहां पे क्या आ जाएगा? 5, right? Next rule. If we multiply any number with its multiplicative inverse or 1 by 5 into 5, what we are going to have? We are going to have 1. Means in a similar way, if I multiply any number with its inverse, A inverse means 1 by A. What is the meaning of A inverse? It is 1 by A. Means A into 1 by A, 5 into 1 by 5. If I multiply any number with its inverse or any inverse with that number, what I am going to have? I am going to have I. For example, A into 1 by A or 1 by A into A. What I am going to have? I am going to have 1. I am going to have 1.
and in terms of a matrices 1 means what? I. So बच्चों, what we do in elementary transformation, we use this equation, we transform this equation into this equation. You can say that what we do in the process of elementary transformation to find the matrices of to find the inverse of a matrices, we transform this equation into this equation. अब वो कैसे करते हैं उसके लिए हम कुछ ऑपरेशंस यूज करते हैं. वो कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ. आई होप टिल हियर द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. To transform this equation into this equation, we use different elementary operations. There are 3 operations in your syllabus. There are 3 different operations in your syllabus. आइए सीखते हैं क्या होते हैं वो ऑपरेशन. elementary operations. Elementary operation. First operation is any row or any column can be multiplied by any non-zero number. Can be multiplied by any non-zero number means, for example, if a matrix is A having elements 1, 2, 3, 4, if this matrix is, say, we all know that this is row 1 and this is row 2, and we also know that this is column 1 and like this column 2. So what I am going to do now, I am going to apply operation on R1, and the operation is multiply all the elements of R1 with 5, and here I am going to apply this operation on column 2 elements, that is multiply all the elements of column 2 by 5. इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जिस रो में मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे, और क्या ऑपरेशन आप लगा रहे हो कि इसके सभी एलिमेंट्स को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. जिस कॉलम में मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे. आप एक टाइम पे किसी भी एक रो या एक कॉलम पे ही ऑपरेशन लगा सकते हो. ऑपरेशन जो होते हैं आपके टू टाइप्स के होते हैं, इधर इट विल बी अ रो ऑपरेशन और इट विल बी अ कॉलम ऑपरेशन. और जब आप इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हो तो आप किसी एक ऑपरेशन से ही फाइंड आउट कर सकते हो बाय द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. या तो आप सारे के सारे ऑपरेशन जो होंगे आपके वो रो पर होंगे, या सारे के सारे आपके होंगे कॉलम ऑपरेशन, जो आगे मैं जब आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा then you will be able to understand that. Now what will be the matrices of A now after applying this operation? 5 into 1 5, row 1 elements, 5 2 ja 10, 3 4. And what will be the value of our matrices here? 1 3, 5 2 ja 10, 5 4 ja 20. So this is the first elementary operation. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. इफ एनी रो और एनी कॉलम कैन बी मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, किसी भी रो और किसी भी कॉलम को हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ करके दिखाया. R1 R2 मैंने ऑपरेशन लगाया R1 पे. मैंने आपको ये भी बताया जिस भी रो और कॉलम पे आप ऑपरेशन लगाते हो उसको आप पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे. इट मीन्स आपने जो ऑपरेशन लगाया है वो R1 यानी कि रो 1 के एलिमेंट्स पे लगाया है, और क्या ऑपरेशन लगाया है कि इसके सभी एलिमेंट्स को आपने 5 से क्या किया है, मल्टीप्लाई. और यहाँ आपने ऑपरेशन जो लगाया है वो कॉलम 2 पे लगाया है, और क्या ऑपरेशन लगाया है कि सभी कॉलम्स के जो एलिमेंट्स हैं उसको आपने 5 से क्या किया है, मल्टीप्लाई. आइए अब सेकंड ऑपरेशन देखते हैं बच्चों. सेकंड ऑपरेशन ये होता है आपका दैट एनी टू रोज or two columns can be interchanged.
can be interchanged. For example, say there is a matrix is A 1 2 3 4. मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ऑपरेशन मैंने लगाया, ऑपरेशन किस तरह से लगाओगे, सेम आई एम अप्लाइंग द ऑपरेशन दैट R1 इंटरचेंज विद R2. अगर आप इंटरचेंज करते हो बच्चों तो दोनों ऑन द बोथ साइड यू विल शो दिस एरो साइन. इट मीन्स यू आर इंटरचेंजिंग R1 एलिमेंट्स विद द R2. तो मेरी मैट्रिसेस A की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो मेरे R2 के एलिमेंट्स है वो R1 पर आ जाएंगे, दैट इज 3 4 1 2. इन अ सिमिलर वे से आई एम अप्लाइंग ऑपरेशन, आई एम इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 1 विद कॉलम 2. तो मेरी मैट्रिसेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 4 1 3. So first of all, what are the rules on the basis of which we do elementary transformation? We transform this equation into this equation. And how many operations we can apply in during the process of elementary transformation? In your syllabus there are 3 operations. First one is we can multiply any row or any column by any non-zero number. Second operation is we can interchange any 2 rows or 2 columns. Right? I hope till here the concept is clear to you. Now pause the video, note it down, then we will proceed with the further concept. Let's understand the third operation of elementary transformation, which is more important than these 2 operations. Or you can say that in almost every question you will apply this operation, right? What is the third operation? Third operation is any 2 rows or columns can be added, or for that matter subtracted. Say for example, again given matrices is 1 2 3 4 and I am applying my operation on R1, means R1 plus R2, और इस ऑपरेशन को आप ऐसे भी लगा सकते हो R2 प्लस 3R2 और R1 माइनस 5R2 और R2 प्लस R2 माइनस 4R1. इसी तरह से ये ऑपरेशन आपका हो सकता है C1 प्लस C2, C2 प्लस 3C2, C1 माइनस 5C2 एंड C2 माइनस 4C2. राइट. अब आपने एक चीज पे ध्यान देना बच्चों, अब यहां देखो R1 R1 R2 R2 R1 R1 R2 R2. In a similar way C1 C1 C2 C2 C1 C2 मीन्स जिस रो में आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे वो एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे शो होगा. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस रो में आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपका वही होगा, वही होना चाहिए. दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट. अगर आप ऑपरेशन R2 पे लगा रहे हो तो यहाँ पहले आप R2 लिखोगे. अगर आप ऑपरेशन R1 पे लगा रहे हो तो पहले क्या आएगा R1. अगर आप ऑपरेशन R2 पे लगा रहे हो तो पहले क्या आएगा R2. इसी तरह से C1 तो C1 C2 C2 C1 C1 C2 C2. अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप ये ऑपरेशन लगाते हो जो आपकी सेकंड, जैसे आपने अगर R1 पे ऑपरेशन लगाया है किसके रिस्पेक्ट पे लगा रहे हो R2, तो जो R2 होता है आप उसको किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो. जैसे कि मैंने यहाँ पे किससे किया है 3 से, और यहाँ पर किससे किया है 5 से, और यहाँ पर किससे है 4 से. इन अ सिमिलर वे जब आप किसी कॉलम पे ऑपरेशन लगाते हो और जिस कॉलम के रिस्पेक्ट पे आप लगाते हो, लाइक मैं C1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट पे C2, तो जो C2 है मैं उसको किसी नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकता हूँ मल्टीप्लाई. लेकिन जिस कॉलम या जिस रो पे आप ऑपरेशन लगाते हो उसको आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. फर्स्ट थिंग
यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस रो या जिस कॉलम पे आप ऑपरेशन लगाओगे वो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एज इट इज ही लिखा जाएगा, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट पे आप लगाओगे वो रो या उस कॉलम को आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट ऑपरेशन जो है इसमें मैट्रिसेस की वैल्यू क्या होगी, R1 पे आपने ऑपरेशन लगाया, किस पे लगाया बच्चों, R1 पे, तो इसके सारे एलिमेंट्स पे ये ऑपरेशन लगेगा। R1 प्लस R2 मीन्स 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, और बाकी की जो मैट्रिसेस है आपकी एज इट इज ही रहेगी। इन अ सिमिलर वे जब यही सेम ऑपरेशन आप यहाँ लगाओगे तो इस मैट्रिसेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 पे ऑपरेशन लगाया है C1 प्लस C2, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7, और ये एज इट इज हो जाएगा। इसी तरह से मैं थर्ड वाला ऑपरेशन अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूं। ए R1 पे ऑपरेशन लगाया R1 माइनस 5R2, तो बच्चों कैसे लगेगा, देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 1 माइनस 5 इंटू R2 एलिमेंट दैट इज 3, तो 1 माइनस 15 कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 14, तो फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 14, राइट। अब अगर सेम ऑपरेशन में सेकंड एलिमेंट पे लगाता हूं तो ये होगा 2 माइनस 5 और R2 यानी कि 4, तो 2 माइनस 20 दैट इज माइनस 18, और ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 4। इन अ सिमिलर वे मैं यहाँ अगर C2 पे ऑपरेशन लगाता हूं तो देखिए क्या है, आपने ऑपरेशन C2 पे लगाया तो C1 के एलिमेंट तो आपके एज इट इज ही रहेंगे 1 3। अब ऑपरेशन लगेगा C2 पे, क्या ऑपरेशन लगा है C2 एलिमेंट्स 2 माइनस 4, सॉरी बच्चों यहाँ पर आएगा आपका C1 इंटू C1 एलिमेंट, तो 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 2, अगेन C2 एलिमेंट्स 4 माइनस 4 इंटू 3, और 4 माइनस 12 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 4 माइनस 12 माइनस 8। So these are the three operations on the basis of which we find the inverse of a matrix by using elementary transformation. I hope the concept is clear to you. Now pause the video, note it down, then we will proceed with the questions of exercise 3.2. Friends, let's continue with the first question of this exercise 3.4. Your question is, using elementary transformation, find the inverse of the following matrix. This is the first question, means we have to find the inverse of this matrix if it exists. So first of all we need to understand what is the meaning of if it exists. It means there is a concept, if any rows, sorry इसको आप ऐसे इस तरह से लिखिए, if all the elements, if all the elements of any row or for that matter or any column are 0, then inverse of that particular matrix, will not exist. First of all we need to understand when the inverse of a matrix exists or when it is possible to find the inverse of a matrix or when it is not. तो बच्चों कंसेप्ट ये होता है, किसी भी रो के अगर सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं, फॉर दैट मैटर फर्स्ट रो के अगर सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए और सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए जीरो, तो देर इज नो पॉसिबिलिटी टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो हम उसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इन अ सिमिलर वे किसी भी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो देर इज नो वे वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, बिकॉज वी नो दैट इन मैथमेटिक्स 1/0 इज इक्वल टू इनडिफाइंड मैट्रिक्स जो है बच्चों, से इट इज इक्वल टू ए। नाउ if we are going to find the inverse of this matrix by row elementary transformation, means by elementary
रो ऑपरेशंस, बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। बच्चों अगर आप रो ऑपरेशन से अप्लाई करते हो तो जो आपकी इक्वेशन होती है रो ऑपरेशंस के लिए वो होती है A इज इक्वल टू आई ए। और अगर आप कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो इसी इक्वेशंस को A इज इक्वल टू ए आई लिखा जाता है। आपके एनसीईआरटी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप रो ऑपरेशन से अप्लाई करोगे तो A इज इक्वल टू आई ए, और अगर आप कॉलम ऑपरेशन से अप्लाई करते हो तो A इज इक्वल टू ए आई। हालांकि जब हायर क्लासेस में आप इस चीज को स्टडी करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कॉलम के लिए आपको A इज इक्वल टू ए आई लिखने की जरूरत है, बट वी नीड टू फॉलो द एनसीईआरटी कंसेप्ट। सो वंस यू आर गोइंग टू अप्लाई row operations, then apply this equation A is equal to IA, and for column operations A is equal to AI. So first of all we will apply row operation. अब बच्चों आपको करना क्या है, put the value of A here, that is 1 minus 1 2 3. What is the value of identity matrices? If this is of 2 by 2 order, then 2 by 2 order value is 1 0 0 1। और जो बच्चों i के साथ जो a होगा आपने इसको फिक्स रखना है, इसको क्या रखना है, फिक्स। अब हमें करना क्या है कि ये जो a है, ये जो a है इसको हमें बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, मींस इसको हमें क्या बनाना है 1 0 0 1। बट क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो जो जब मैं इस मैट्रिक्स को 1 0 0 1 बनाने के लिए जाऊंगा तो वही सेम चेंजेस जब मैं इसमें करूंगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब आपको याद होगा जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी कि A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, A इंटू ए इनवर्स, और फॉर दैट मैटर A इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो जैसे ही ये आपका I बन जाएगा तो ये I होने का मतलब ये I कब हो सकता है, जब A के साथ जो वैल्यू हो वो किसकी हो, A इनवर्स की। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें इसको I बनाना है 1 0 0 1। कैसे बनाएंगे, बाय अप्लाइंग 3 ऑपरेशंस जो मैंने आपको अभी बताया। और जैसे ये I हो जाएगा तो ये I कब हो सकता है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन A इंटू ए इनवर्स और A इनवर्स इंटू ए मल्टीप्लीकेशन हेल्ड। इट मीन्स अगर ये I है तो A के साथ जो है वो क्या है, उसका इनवर्स। अगर ये I है तो A के साथ A से पहले जो है वो A का इनवर्स है, या फिर A के साथ जो बाद में है वो उसका इनवर्स है। क्योंकि यहाँ पे जो A से पहले वैल्यू आएगी उसी को हम क्या कहेंगे, A इनवर्स। कॉलम ऑपरेशन में फिर जो A के बाद वाली वैल्यू होगी वो आपका A इनवर्स बनेगी, और वही आपका क्या होगा, आंसर। तो अब इसको किस तरह से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, लेट्स सी। बच्चों ऑलरेडी 1 तो यहाँ पे है, मुझे इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, और इसको क्या करना है 1। तो जो मुझे सबसे इजी दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि मैं अगर R2 पे ऑपरेशन लगाता हूँ, मैंने कहा जिस पे आप ऑपरेशन लगाओगे उसको पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे। अगर मैं R2 पे ऑपरेशन लगाता हूँ मीन्स आई एम अप्लाइंग द ऑपरेशन ऑन दिस एलिमेंट। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है 2 - 2 करूंगा तो 0 हो जाएगा, मीन्स R2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ R2 - 2 R1। कौन सा ऑपरेशन लगाया मैंने, थर्ड ऑपरेशन। मैंने आपको पहले ही कहा था सबसे ज्यादा जो यूटिलाइज होगा या यूज होगा वो इसी ऑपरेशन का होता है। और मैंने ये भी बताया था जिस रो पे आप ऑपरेशन लगाओगे या फॉर दैट मैटर जिस कॉलम पे आप ऑपरेशन लगाते हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एज इट इज लिखा जाता है, लेकिन जिस रो के रिस्पेक्ट में आप लगाओगे उसको आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। क्या आपने फर्स्ट रो पे कोई ऑपरेशन लगाया, नहीं, तो बच्चों इसकी वैल्यू तो एज इट इज रहेगी 1 - 1। अब जब आपने ऑपरेशन लगाया तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 - 2 इंटू R1 एलिमेंट जो कि यहाँ पे क्या है 1। तो कहने से 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल। और जब आप इस पे लगाओगे तो 3 - 2 इंटू R1 एलिमेंट, तो 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 5। अब जब सेम ऑपरेशन आप यहाँ लगाओगे 1 0 1 0, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 0 - 2 इंटू R1 एलिमेंट दैट इज -2 1 - 2 इंटू R1 एलिमेंट, तो 1 - 0 कितना हो गया 1, राइट।
फर्स्ट रो एलिमेंट विल रिमेन सेम, क्योंकि आपने ऑपरेशन किस में लगाया, R2 पे। R2 0 -2 इंटू R1 एलिमेंट दैट इज 1, तो 0 - 2 कितना हो गया, -2। 1 -2 इंटू R1 एलिमेंट, तो 2 इंटू 0 क्या होता है, 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, और ये हो गया आपका A। चलिए अब बच्चों व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मुझे इसको क्या बनाना है, 1। अब ऑपरेशन बच्चों किस तरह से लगाए जाते हैं, ऑपरेशन आपने इस तरह से लगाने हैं कि जो ऑलरेडी आपका मैच कर चुका है वो आपका मिसमैच ना हो, नहीं तो आप यही करते रहोगे। जैसे कि अब ये 0 बन चुका है, अब ऐसा नहीं कि मैं कोई ऑपरेशन ऐसा लगा दूं कि ये 0 की जगह से मैंने लगा दिया R2 + R1। ये 5 है, मुझे इसको 1 बनाना है, तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इससे क्या कर दिया, माइनस। मीन्स अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं सॉरी, ये 5 है, मुझे इसको 1 बनाना है, तो मुझे पता है R2 - 4 R1 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे बच्चों, 5 सॉरी प्लस, तो 5 - 4 कितना हो जाएगा, 1। लेकिन जब मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये भी तो चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 + 4 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 4। तो फिर आपका एक एलिमेंट मैच हो गया, दूसरा मिसमैच हो गया। तो इस तरह से नहीं, आपने क्या करना है, जब एक एलिमेंट आपका मैच हो गया तो नेक्स्ट ऑपरेशन आपने जो लगाना वो इस तरह से लगाना है कि वो फर्स्ट वाला एलिमेंट आपका एज इट इज ही रहे, राइट। तो आप क्या करोगे, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे और क्या लगाएंगे, 1/5 इंटू R2, दैट इज योर फर्स्ट ऑपरेशन, कि किसी भी रो या कॉलम को हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 1 - 1, ऑपरेशन आपने लगाया R2 पे, 0 इंटू 1/5 0, तो देखो जो भी आपने ऑपरेशन लगाया है उससे आपकी वैल्यू अभी भी मैच कर रही है सॉरी। तो बच्चों 1/5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 1, इक्वल टू 1 0 -2 इंटू 1/5 -2/5, 1 इंटू 1/5 1/5, और ये हो गया बच्चों A, राइट। नाउ अब मुझे यहाँ पर क्या बनाना है बच्चों, देखो 1 हो गया, 0 आ गया, 1 आ गया, मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, 0। तो मैं क्या करूंगा, R1 पे ऑपरेशन लगाऊंगा, R1 + R2, तो 1 + 0 1, -1 + 1 0 0 1, 1 प्लस माइनस क्या होगा, -2/5, 5 - 2 3/5, 0 + 1/5, ये हो जाएगा बच्चों 1/5, -2/5 और 1/5। जैसे ये आई हो गया, अब आप क्या सकते हो, ये आई, अब ये आई कब पॉसिबल है, जब A इनवर्स इंटू A हो। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है बच्चों, A इनवर्स की, दैट इज इनवर्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3/5 1/5 -2/5 and 1/5, and this is the answer of this question. I hope the concept is clear to you. Now pause the video, note it down, then we will proceed with the column operation. Let's do this question by column operation, by elementary column operation. कॉलम ऑपरेशन की क्वेश्चन क्या होती है बच्चों, मैंने आपको अभी बताया था, अगर कॉलम ऑपरेशन आप अप्लाई करोगे तो आप इसको किस तरह से लिखोगे, A = AI, as per your NCERT concept. If we are applying column operation, then equation will be A = AI, and if we are applying row operation, then equation will be A = IA, right. Now what is the value of A, 1 -1 2 3, जो I के साथ है उसको आपने फिक्स रखना है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, 1 0 0 1। अब मुझे कॉलम पे फोकस करना है, या तो मैं इसको 0 बनाऊं, या मैं इसको पहले 1 बनाऊं, या मैं इसको 0 बनाऊं, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, 1 0 0 1। तो बच्चों देखो -1 + 1 0 सबसे इजी दिखाई दे रहा है, तो मैंने ऑपरेशन ये लगाया है, C2 पे ऑपरेशन लगाया है,
C2 plus C1. So what I am going to have 1 2 minus 1 plus 1 0, 3 plus 2 कितना हो जाएगा 5, राइट। 1 0 0 plus 1 1 1 plus 0 1। अब हमने क्या किया, अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, मुझे इसको 1 बनाना है, तो मैंने क्या किया C2 पे मैंने C2 पे ऑपरेशन लगा दिया एंड द ऑपरेशन इज 1/5 ऑफ C2। मैं C2 के सभी एलिमेंट्स को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/5 से। व्हाट आई एम गोइंग टू हैव 1 2 0 into 1/5 0, 5 into 1/5 1, and it is equal to A 1 0 1 into 1/5 1/5 and 1 into 1/5 again 1/5. Right now 1 0, अब मुझे इसको 0 बनाना है बच्चों, तो व्हाट आई विल डू, मैंने C2 पे ऑपरेशन लगा दिया, C2 minus 2C1 C2 minus 2C1, क्योंकि 2 minus 2 क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, सॉरी मुझे इसको क्या बनाना है 0 बनाना है बच्चों। एक्चुअली ऑपरेशन मैंने R2 का लगा दिया, इसका लगा दिया R2 का, मुझे कॉलम वाइज देखना है, तो क्या होगा C1 पे ऑपरेशन लगाया मैंने C1 इसको मुझे क्या बनाना है बच्चों 0 minus 2C2, तो ये हो जाएगा आपका, जब आप इस पे अप्लाई करोगे तो 1 minus 2 into C2 एलिमेंट 0, तो 1 minus 0 क्या होगा बच्चों 1 2 minus 2 into C2 एलिमेंट्स 1, तो 2 minus 2 क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा बच्चों 0 और 1, राइट, इक्वल टू A 1 minus 2 into C2 एलिमेंट्स 1/5, 5 minus 2 3/5, 0 minus 2 into 1/5, अगेन 5 minus 2, आप देख सकते हो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0 minus 2 into 1/5, तो 5 minus 2 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 3/5, और ये हो गया 1/5 और ये हो गया 1/5, राइट। देखो फिर से चेक कर लेते हैं, A is equal to AI 1 minus 1 2 into 3 is equal to A 1 0 0 1। मैंने C2 पे ऑपरेशन लगाया C2 plus C1, मीन्स -1 + 1 क्या हो जाएगा बच्चों 0, और 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। सॉरी आज थोड़ी तबीयत खराब है मेरी। 0 + 1 क्या हो जाएगा बच्चों 1, और 1 + 0 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। फिर आपने C2 पे ऑपरेशन लगाया, कॉलम 2 के सभी एलिमेंट्स पे क्या लगाया कि इन सभी को मैंने 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 into 1/5 क्या होगा बच्चों 0, और 1/5 into 5 क्या होगा 1। इसी तरह से 1 into 1/5 क्या होगा 1/5, और 1 into 1/5 क्या होगा 1/5। अब बच्चों आप ये देखो कि मुझे क्या चाहिए 1 0 0 1, मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, तो मैंने C1 पे ऑपरेशन लगाया, क्या लगाया कि C1 minus 2C2 C1 minus 2C2, तो व्हाट आई एम गोइंग टू हैव, जैसे मैंने C1 पे ऑपरेशन लगाया तो 1 minus 0, तो क्या हो जाएगा 1, 2 minus 2 ये क्या हो जाएगा 0, 1 minus 1/5, तो जब मैंने यहाँ पे लगाया बच्चों तो ये हो गया 1 minus 2 into 1/5, 5 minus 2 कितना हो जाएगा 3/5, 0 minus 2 into 1/5, तो बच्चों एक्चुअली ये होगा आपका -2/5। तो बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि चाहे आप रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हो, आपका आंसर क्या आना चाहिए ठीक, और दोनों तरफ फोकस करना होता है, तो एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इन क्वेश्चंस में, तो बहुत ही कंसंट्रेशन से आपने करना है। इनफैक्ट आप करने के बाद एक बार उसको चेक भी कर सकते हो, राइट। तो बच्चों ये आई आ गया, अगर ये आई है ये कब पॉसिबल है, जब मैं A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं, राइट। इट मीन्स माई A इनवर्स विल बी इक्वल टू 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5,
So how to apply row operation? A is equal to IA equation. How to apply column operation? By A is equal to AI. If all the elements of any row or any column are equal to 0, then there is no existence of inverse of that particular matrix. I hope till here the concept is clear to you. Now pause the video, then we will proceed with the next question. Let's continue with the third question. अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया बच्चों, तो अब हम थर्ड क्वेश्चन को इसी कंसेप्ट के साथ कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको ये कहा था कि जो भी गिवन मैट्रिसेस है दैट इज इक्वल टू ए। अब आपने ये डिसाइड करना है। देखो बच्चों 99.9% क्वेश्चन में कभी ये नहीं लिखा हुआ कि आप इसको रो ऑपरेशन से करो या कॉलम ऑपरेशन से करो, तो आप किसी भी ऑपरेशन से क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ आता है कि आपको उस क्वेश्चन को कॉलम ऑपरेशन से करना है, तो वो मैंने आपको अभी बताया कि कॉलम ऑपरेशन किस तरह से अप्लाई होता है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि रो एलिमेंट्री आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से जो मैट्रिसेस निकालनी है वो रो ऑपरेशन से निकालनी है, तो वो भी मैंने आपको बताया। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई सेड 99.9% क्वेश्चन में कभी गिवन नहीं होगा कि किस ऑपरेशन से आपको उसका इन्वर्स निकालना मैट्रिसेस का। इट्स अप टू योर चॉइस। थोड़ा बच्चों आज आपको मैनेज करना पड़ेगा। एज आई सेड कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो मैं ज़्यादा जोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन आप हेडफोन लगा के जब लेक्चर को अटेंड करोगे आई होप कोई वॉइस का इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो बच्चों मैं इसमें जो अप्लाई कर रहा हूँ, हाँ से रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम मोर कंफर्टेबल विद द रो ऑपरेशन बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। क्या इक्वेशन होती है बच्चों? A इज इक्वल टू आई ए। रो ऑपरेशन में आई पहले आएगा आपका। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर? 1 3 2 7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? 1 0 0 1 एंड इट इज ए, राइट। अब मुझे इस वैल्यू को 1 0 0 1 बनाना है, तो सबसे इजी मुझे ये दिखाई दे रहा है, तो मैंने ऑपरेशन लगाया R2 पे, और ऑपरेशन क्या लगाया? R2 माइनस 2R1 मीन्स 1 3, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 2 इंटू 3, तो 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 1 1 0 0 माइनस 2 इंटू 1 ये हो जाएगा -2। और बच्चों R2 पे ऑपरेशन लगाऊंगा तो 1 माइनस 2 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा? 1, राइट। बहुत ध्यान से करना बच्चों, मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें एरर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब बच्चों इसको मुझे 0 बनाना है, क्योंकि 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, तो मैंने R1 पे ऑपरेशन लगाया। क्या लगाऊंगा? 0 बनाना है, तो R1 माइनस 3R2। कोशिश आपने यही करनी है कि जो एलिमेंट्स आपके मैच हो चुके हैं वो मिसमैच ना हो, ठीक है। R1 माइनस 3R2, क्योंकि 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0, तो ये हो जाएगा बच्चों R1 1 माइनस 3 इंटू 0, 1 ही रहेगा ये आपका, और 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा बच्चों? 0 0 1, राइट। नाउ 1 माइनस 3, R2 एलिमेंट -2, तो 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 7 0। अब इसके नीचे भी लिख के चेक कर सकते हो, 0 माइनस 3, R2 की जगह क्या आ जाएगा? 1, तो ये कितना हो जाएगा? -3 -2 1, राइट। सो अगर ये बच्चों आई है तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा आपका? A इनवर्स। देयरफॉर इनवर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 7 -3 -2 and 1. So this is the third question of this exercise. I hope the concept is clear to you. Now pause the video and note it down. Question number 12 of this exercise. Again, given matrix will be equal to A. Say if I am applying by elementary रो ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन मैं अप्लाई कर रहा हूँ? रो। तो इक्वेशन क्या होती है बच्चों? A इज इक्वल टू, रो ऑपरेशन में आई पहले आता है एज आई टोल्ड यू, वैल्यू ऑफ A दैट इज 6 -3 -2 1, I 1 0 0 1, और ये क्या हो गया आपका A। नाउ
अगर मुझे इसको 0 बनाना है, क्या बनाना है बच्चों? 0। आपके ऊपर है, आप इसको भी बना सकते हो कि आप किस तरह से करना चाहते हो, लेकिन अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो मैं R1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ। क्या होगा बच्चों? R1 -3 +3 करना होगा, यानी कि +3 R2। तो बच्चों देखो ये क्या हो गया? 6 +3 और R2 एलिमेंट्स कितना है? -2। कैन आई से दैट 6 - 6 0? तो ये आपका 0 हो गया। -3 +3 × 1 और ये भी क्या हो गया? 0 और ये हो गया -2 1। नाउ 1 +3 × 0 1 0 +3 × 1 3 0 1 और ये क्या हो गया बच्चों? A। Now as I told you, if all the elements of any row or for that matter any column are equal to 0, then inverse of that particular matrix will not exist. Now because all elements of R1 means row 1 are 0, therefore inverse of matrix will not exist. Right? तो ये क्वेश्चन आपका यही कंप्लीट हो गया। राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 14 अगेन इट इज इक्वल टू वो, मैं इसको बच्चों कॉलम ऑपरेशन से करके दिखा रहा हूँ आपको। बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। As I told you, A is equal to what? AI। A किसके इक्वल होता है बच्चों? AI के। What is the value of A? 2142। जो I के साथ A होता है इसको आपने एज इट इज फिक्स करना है, फिक्स ही रखोगे आप इसकी वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू आप पुट नहीं करोगे। अब कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है बच्चों। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? 0। तो मैंने क्या C2, अब C2 पे ऑपरेशन लगाना है मुझे। तो कैन आई से दैट इजी क्या रहेगा? आई थिंक इजी बच्चों आपका ये रहेगा, आप C1 पे ऑपरेशन लगाओ। C1 पे अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूँ तो 2 - 1 तो C1 - C2। तो बच्चों 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1 और 4 - 2 क्या हो जाएगा? 2 और ये हो गया 1 और ये क्या हो गया आपका? 2 इज इक्वल टू A C1 - C2 1 - 0 1 0 - 1 -1 0 और 1। राइट? अब मुझे इसको 0 बनाना है। इसको क्या बनाना है? 0। तो मैंने C1 पे ऑपरेशन लगाया, C1 - C2। तो जैसे ही लगाया बच्चों 1 - 1 क्या हो गया? 0। 2 - 2 क्या हो गया? 0 1 2 इज इक्वल टू A 1 - 0 1 -1 -2 0 1। बिकॉज आप देख सकते हो सभी एलिमेंट्स कॉलम 1 के क्या हो गए? 0। बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 आर 0, therefore inverse of given matrix will not exist, so I hope the concept is clear to you। किसी भी रो के अगर बच्चों सारे एलिमेंट 0 होते हैं या किसी भी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्वेश्चन वहीं कंप्लीट हो जाएगा आपका। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ फ्रेंड, दिस इज योर टुडेज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और ये इनके आंसर्स हैं। मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ A इनवर्स फॉर दिस मैट्रिक्स एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ A इनवर्स फॉर दिस मैट्रिक्स। आपने ये तीनों क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। इन केस आपका किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं आता है तो आप मुझे टेक्स्ट करोगे और नेक्स्ट रिकॉर्डिंग लेक्चर में मैं आपका वो डाउट कंसीडर करूँगा। तो दिस इज फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।